بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم بیان کر رہے ہیں تاریخ اسلام سن 632 سے لے کر 1923 تک۔ آج اس کی 14ویں قسط ہے اور اس میں ہم بیان کریں گے خالد بن ولید سے سندھ کی فتح تک۔ تو دوستو، ابن خلدون کے مطابق طارق بن زیاد کی فوج میں 300 عرب اور 10,000 بربر سپاہی تھے۔ وہ سربا فلک چٹان جس کے کنارے طارق بن زیاد نے لنگر ڈالے تھے، جبل طارق یعنی طارق کے پہاڑ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے جبرالٹار تار کہتے ہیں، اور وہ ابنائے جو شمالی افریقہ اور اسپین کو جدا کرتا ہے، ابنائے جبرالٹار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طارق ایک بہترین سپاہ، قابل سپہ سالار، ایمان کا پکا، مضبوط اور ارادہ کا مالک تھا۔ انہوں نے وہ کشتیاں جلا دی جس کے ذریعے اس کی فوج آئی تھی۔ اس میں جوش بھر دیا کہ توحید کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں یا اسی راہ میں فنا ہو جائیں۔ مقامی ویسی گوت افسر تھیوڈرے میر کے ساتھ جھڑپ شروع ہوئی، جس میں آخر میر کو مکمل شکست ہوئی۔ یہ سن 711 کا سال تھا۔ راڈگرز کو جب اس حملہ کی اطلاع ملی تو اس نے 80,000 فوج جمع کی اور مسلم افواج سے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ طارق بن زیاد نے شمالی افریقہ سے مزید فوج کی درخواست کی۔ مزید 7,000 فوج کا ایک دستہ طارق بن مالک کی کمان میں آ گیا۔ اسی کے نام سے اسپین کا شہر طریفہ مرسوم ہے۔ گوڈلو کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا بنا ہوا۔ مسلمان منصفانہ سیاسی نظام کے قیام کے لیے لڑ رہے تھے، جبکہ ویسی گوت ایک جابرانہ نظام کو بقا کو بچانے کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ عرب حرکت پذیر کشتی جنگ کی فن میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ بہترین شاہ سوار تھے۔ یہ عربستان اور ایشیا کے صحراؤں میں مسلسل حملے کرتے کرتے برق رفتاری کے ساتھ لپیٹ لینے والے حملے کے طاق میں ہو گئے تھے۔ ویسی گوت ساکن اور مقامی طور پر جنگ کے عادی تھے۔ دونوں کو کوئی مقابلہ نہ تھا۔ اس کے باوجود کہ مسلم افواج تعداد میں بہت کم تھی، انہوں نے ویسی گوتھیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ راڈرز میدان جنگ میں قتل ہو گئے۔ شکست کھا کر بھاگنے والے مسیگیتی تولید پہنچے، جو اسپین کا پرانا صدر مقام تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 دستوں میں بانٹ دیا۔ ایک دستہ قرطبہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے دستہ نے مورسیا پر دعویٰ بولا اور اسے متیح کر لیا۔ فوج کا تیسرا حصہ شمال کی جانب سرگوسا کی طرف بڑھا۔ خود طارق بن زیاد نے سرحد کے ساتھ تولیدو کی طرف پیش قدمی کی۔ شہر والوں نے بغیر کسی جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح اسپین سے ویسی گوت سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ موسیٰ بن نصیر تازہ دم فوج کے ساتھ اسپین کی سرزمین پر اترے۔ سب سے پہلے وہ سویلے کی جانب بڑھا۔ شہر کا دفاع کرنے والے نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور طویل عرص محاصرہ کی ابتدا ہوئی۔ عربوں کی حملہ کرنے کی قوت، ان کی فوجی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ویسی گوتھیوں کے دفاعی طریقوں سے کئی زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ موسیٰ اپنے ساتھ منجنیقیں لایا تھے، جن کے ذریعے قلعہ کی دیواروں پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جانے لگے، جس کی وجہ سے قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا گیا۔ تو اس کے بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب بنو امیہ کی فوجیں جزیرہ نما اسپین میں چاروں طرف پھیل گئی۔ یک بعد دیگر تیزی کے ساتھ شہر در شہر فتح ہونے لگے۔ میاڈرک، سرگوسا، بارسلونا اور پرتگال ایک ایک کر کے فتح ہو گئے۔ پیرینس کے بلند پہاڑیاں سلسلے کو بھی پار کر گئے۔ فرانس کے جنوبی حصہ لائنس پر قبضہ کر لیے۔ یہ فتح 712 میں ہوئی۔ موسیٰ بن نصیر فرانس اور اٹلی کی جانب اور آگے پیش قدمی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اسی دوران دمشق میں ولید دوم بیمار ہو گئے۔ اقتدار کے لیے رسا کشی شروع ہو گئی۔ نئے خلیفہ سلمان کے ہاتھ وفاداری کا عہد لینے کے لیے موسیٰ کو بلایا گیا۔
मूसा ने अपने बेटे अब्दुल अजीज को स्पेन का अमीर मुकर्रर कर दिया। दूसरे बेटे अब्दुल्ला को शुमाली अफ्रीका की कमान में दिया। तेजी के साथ बनु अमिया खलीफा के दरबार में जा पहुंचे। स्पेन की फतह के दौरान मुसलमानों को बहुत ज्यादा माले गनीमत हासिल हुआ। मूसा इस माले गनीमत को जल्द अज जल्द खलीफा के दरबार तक पहुंचाना चाहता था, ताकि वलीद दोम मरने से पहले इस बेइंतहा खजाने को देखकर मूसा की खदमात का एतराफ करे। इधर सुलेमान ने मूसा तक पैगाम भेजा कि वो आने में जल्दी ना करे। सुलेमान का मकसद ये था कि खजाना इस वक्त आए जब वलीद दोम का इंतकाल हो चुका हो और खुद इसका मालिक बन जाए। मूसा मलिक दोम का एहसान मानता, अजराए खुशी इनकरासारी इसने इस हुक्म पर अमल नहीं किया। वो वलीद के इंतकाल से पहले आ पहुंचा। सुलेमान इस पर बहुत तलमलाया कि मालिक गनीमत पर हक जताने का मौका हाथ से जाता रहा। जैसे ही सुलेमान तख्त पर बैठा, इसने बदला लेने की खातिर मूसा से तमाम अख्तियारात और आजादात छीन लिए। जंग के लिए दिए जाने में मालिया के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। इसकी सारी जायदादें जब्त कर ली। इसे इंतहाई गुर्बत तक पहुंचा दिया। मूसा अब अंधा हो चुका था। इसने अपनी बकिया जिंदगी अवामी चंदा पर एक बखारी की तरह गुजारी। स्पेन के यहूदियों और देहातियों ने मुसलमानों का नहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बंदावा मजदूरी का खात्मा किया गया। मुनसवाना मजदूरी का दिया जाना लाजमी कर दिया गया। टैक्स को कम करके उसे पैदावार का सिर्फ 5वां हिस्सा करार दिया गया। इस्लाम कबूल कर लेने वाले को गुलामी से निजात दिलाई जाती। अपने पुराने आकाम के जुल्म और सतब से निजात हासिल करने के लिए गुलामी का जो उतार फेंकने के लिए बेशुमार लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मजहबी अकलियतों को, यहूदियों और ईसाइयों, सबको सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। सरकार के तमाम तरीन आला तरीन ओहदों तक इनको रसाई दी गई। इस्लामी हुकूमत के तहत स्पेन यूरोप के लिए साइंस, फनून लतीफ़ा और तहजीब और तमद्दन का एक रोशन मीनार बन गया। मसाजिद, महल्लात, बागात, अस्पताल और लाइब्रेरियों की तमीर शुरू की गई। पुरानी नहरों की मरम्मत की गई। नई नहरें खोदी गई। अंदलस मगरब का जरखेज गुदाम बन गया। संतो हरफत की हौसला अफजाई की। जजीरा नुमाया स्पेन का सिल्क, कम ख्वाब और कशीदाकारी दुनिया भर की तजारती मराकज़ की मंजूर नजर बन गया। अंदलस को 4 सूबों में बांटा गया और नज़्म निज़ाम को बेहतर बनाया गया। शहरों की आबादियां भी बढ़ी और दौलतमंदी भी आई। अंदलस का सदर मुकाम कुर्तबा यूरोप का सबसे बेहतरीन शहर बन गया। 10वीं सदी ईस्वी में इसकी आबादी 10 लाख तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों, सिंध जो आजकल पाकिस्तान के एक सूबा है, इसकी फतह मरहलावार हुई। हजरत उमर बिन खत्ताब के जमाने में इस्लामी फौजें मकरान की सरहद तक पहुंच गई, लेकिन हजरत उमर ने वहां के मुख्तलिफ जोग्राफियाई हालात की वजह से अपनी फौजों को वापस बुला लिया। अमीर मुआविया ने अफगानिस्तान और शुमाली मशरकी सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वलीद अव्वल 705 से 713 के जमाने तक ये इस्लामी हुकूमतों को पहुंच से दूर ही रहा। लेकिन वलीद ने ही आज जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसकी अक्सर हिस्सा को फतह किया था। इस्लाम के पर्दा ज़हूर पर आने से पहले ही जजीरा नुमा अरब और हिंदुस्तान के मगरबी साल और श्रीलंका के दरमियान तजारत काफी जोरों पर थी। अक्सर जहाज मशरकी मानसून के हवाओं के साथ सफर करते थे। मालाबार और श्रीलंका के सालों पर नजर अंदाज होते, मसाला जात खरीदते और मगरबी मानसून की हवाओं के साथ वापसी की सफर करते जाते थे। मगरबी एशिया, शुमाली अफ्रीका और जनूबी यूरोपीय ममालिक में गर्म मसालों की बहुत मांग थी और ये तजारत काफी मुनाफा बख्श थी। ये तजारत मुसलमानों के मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका को फतह करने के तक जोर शोर से चलती रही। इन्हें व्यापारियों के जरिए इस्लाम पहली मरतबा केरला, जनूबी मगरबी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से करीबी वाक़या श्रीलंका के इलाकों में इस्लाम पहुंचा। इस दौर में सिंध डाकुओं और बैरी कजाकों की वजह से बहुत ही बदनाम था। ये बैरी कजाक सिंध के साल पर इंतजार में रहते, जब कभी कोई तजारती जहाज इधर गुजरता तो इस पर शबे खून मारते और इसकी लूट लेते। तारीख बदलने वाला ऐसा ही एक वाकया हुआ। सन 707 में
इन बहरी कजाकों ने श्रीलंका से बहरे फारस के लिए जाने वाले समुद्री तजारती जहाजों पर हमला किया। जहाजों के तमाम मुसाफिरों, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिया गया और सिंध के अंदर पहुंचाया गया, जहां के राजा ने इन्हें कैद कर लिया। हज्जाज बिन यूसुफ शकफी इस वक्त इराक का अमवी गवर्नर था। इस वाक़े की खबर जब इसे पहुंची तो इसने राजा दहर को खत लिखा कि मांग की कैदियों को फौरन छोड़ दिया जाए और कजाकों को मुनासिब सजा दी जाए। राजा दहर ने इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से मार्का हराई के लिए राह हमवार हुई। खलीफा वक्त की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी राय की हिफाजत करे, नाइंसाफी के खिलाफ जंग करे, चाहे ये नाइंसाफी किसी से भी सरजद हुई हो। खलीफा की जानिब से गवर्नर नामजद होने की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ पर यह जिम्मेदारी ऐद होती थी। इसने अबैदुल्लाह बिन नहान के ज़ेरे कमान कैदियों को छुड़वाने के लिए फौज रवाना की। जंग में राजा की फौज ने इसे शिकस्त दी। अब्दुल्ला बिन नहान मारा गया। सिंध की सूरत से हज्जाज बिन यूसुफ खतरनाक हुआ था। इसका मुनासिब जवाब देना जरूरी था। हज्जाज ने 7000 अजनूता कार फौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम शकफी को इस मुहिम पर रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल नौजवान था, लेकिन ये इस दौर की बेहतरीन जनरलों में से था। उसने जंग की प्लानिंग पर तवज्जो मतबल की, उधर भारी आलात जंग और जरूरी रसद बजरिया समुंदर रवाना किया और इधर घुड़सवार फौजों के साथ आगे बढ़ा। हमला करने वाली फौज की कामयाबी के लिए जरूरी है कि इसकी जंगी हथियार दफा करने वालों के हथियारों से बरतर हो। मुसलमान बाज़ंतीनी ईरान और वस्त एशिया में जंगों का सामना करते रहे और इन इलाकों में जिस किस्म की जंगी हथियारों का सामना इनको करना पड़ा, इन हथियारों को ज्यादा तरक्की याफ्ता बनाते रहे। सन 700 तक सामान्य जंग और आलात हर्ब तैयार करने में मुसलमान काफी आगे निकल चुके थे। हालात अरब की एक तरक्की याफ्ता मिसाल मजनेके हैं जो बड़े बड़े पत्थर दुश्मनों पर काफी दूर तक फेंक सकती थी। इस किस्म का हथियार 4वीं सदी ईस्वी चीन में इस्तेमाल होता था। मुसलमान इंजीनियरों ने इस चीनी जंगी इंजन में 2 खुसूसी तब्दीलियां की। पहला तो यह कि खलेल की तरह इस्तेमाल में आने वाले इस इंजन के मरकजी महवर के दूसरे किनारे पर तवाज़न के लिए वजन का इजाफा किया, जिसकी वजह से इस हथियार को और ज्यादा दूरी तक मार करने में आसानी हो गई। दूसरे, उन्होंने इसके पूरे इंजन में पहिए लगा दिए, जिसके जरिए इसे और करीब ले जाकर दुश्मन पर कारगर हमला किया जा सकता। मजने के 200 पाउंड के वजनी गोल पत्थर 300 गज से ज्यादा दूरी तक मार करते थे। इस जमाने के मजबूत तरीन किलों पर जब इन इंजनों ने पत्थरों की बरसात की तो मजबूत से मजबूत दीवारें भी जमीन बोस होने लगी। मोहम्मद बिन कासिम पंजगोर और देबल पर कब्जा करने के बाद देबल बंदरगाह की तरफ बढ़ा। यह आज की जदीद कराची के शहर करीब वाक़या है। देबल की राजा ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए और एक तवील मुआसरा शुरू हो गया। एक बार फिर हमला में काम आने वाले हथियार दफाई हथियारों से बरतर साबित हुए। इन्हें अलाव हथियार के इस्तेमाल वजह से मुस्लिम अफवाज दुनिया भर में फतह के झंडे गाड़ती रही और दुनिया में फौजी और सियासी मरकजियत हासिल रही। जैसे कि मुसलमान फतह अपने हमला के बेहतरीन तरीकों की वजह से मैदानी जंग में बरतर रहे, इसी अंदाज को अपनाते हुए मंजनीकों के जरिए किला की बुलंद और मजबूत दीवारों पर पत्थरों की बरसात करते रहे। आखिरकार दीवारें तबाह हो गई। एक हफ्ता के बाद देबल इस्लामी फौज के जेर निगाह आ गया। वहां का मुकामी गवर्नर भाग निकला और मुसलमान कैदी जो यहाँ जेल खानों में बंद थे, इन्हें आजाद करवा लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम देबल से और आगे शुमाल मशरिक की तरफ आगे बढ़ा। बलूचिस्तान और सिंध पर का मुकम्मल कब्जा हो गया। फतह होने वाले इन इलाकों में सस्तियान, बहरान, कच्छ, उर्द्रो, कराच और जेवर के सूबा जात भी शामिल थे। जेवर की जंग में राजा दहर मारा गया। इसका एक बेटा जे सिंह बुरहान बाद की जंग में मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला करता रहा, लेकिन इसे भी शिकस्त हुई और वो भाग निकला। मोहम्मद बिन कासिम ने मौजूदा दौर के कराची शहर के करीब एक नया शहर आबाद किया। वहां एक मस्जिद तमीर की और शुमाल की जानब मगरबी पंजाब की तरफ पेशकदमी की। इसका निशाना मुल्तान तक
इस वक्त मुल्तान का राजा गोरख सिंह, इसकी अपनी एक बड़ी फौज थी। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम रुकते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह।